Hello viewers, in this particular video we are going to talk about the very famous novel by J.M. Singe. The name of the novel is Riders to the Sea. It is a tragedy and the full name of writer is John Millington Synge. I will explain it later in Hindi, but firstly I will read it aloud in English. Edmund John Millington Edmund John Millington Synge was born on 16th April 1871 and died on 24th March 1909. He was an Irish playwright, poet, prose writer, travel writer, and collector of folklore. He was the key figure in the Irish literary revival. He was also one of the co-founders of Abbey Theatre. He is best known for his play, The Playboy of the Western World. It caused riots in Dublin during its opening run at the Abbey Theatre. Raiders to the Sea is a play written by Irish playwright John Millington Synge. It was first performed on 25th of Feb 1904. It is a one-act play, one-act tragedy. The play is noted for capturing the poetic dialogue of rural Ireland. The setting of the play is Aram Islands in Isman. The play is based on the hopeless struggle of a person against the sea. Nora brings a small bundle with her and tells Kathleen that these may be the clothes of their brother, Michael. The young priest told her that a body of a drowned man was found, and it might be Michael's. The sisters are scared to open the bundle of clothes. They don't wish to know all these their mother, Moria. Michael has been missing for a week. The family had already lost 5 men to the sea. They hide the bundle around the cottage. Moria is preparing for the funeral of Michael, and she is ready with coffin. She enters the kitchen, lamenting as usual and worrying that her son will never come back from the sea. Moria, Nora, and Kathleen are discussing the last son of the house, Bartley. He is planning to go to the sea to sell the family horses so that they could get some money. Kathleen and Nora are convinced that he should go to the fair at Galway to sell the animals. Their mother hopes that the priest will not allow him to go in such dangerous tides. Bartley enters the cottage looking for a new piece of rope. Moria tries to stop him, but he says that he wants to make a halter for the horses. It is clear that he is planning to go to the sea. Moira again Moria again tries to dissuade or stop him by showing him whiteboards for Michael. Paying no heed, HEED it will be, he changes his clothes and asks his sister to take care of the sheep. He leaves without receiving any blessings. He is now with a red mare and a grey pony. Then Kathleen notices that he has not taken any food and she asks her mother to give him his food and the blessings. She leaves with the stick Michael brought. Once Moria is gone, the girls open the bundle of clothes to check if they're Michael's. Nora realizes that it's true and also come at the conclusion that he was dead and buried. Buried. The sisters
hid the clothes again because they think that this will spoil Moria's mood. She comes back more distressed than ever. She tells her daughter that she saw Michael on the grey pony and so she couldn't bless Bartley. To calm her down, Nora and Kathleen show the clothes and say that he has had a clean burial. Moria's laments are increased even more when islanders bring the body of Bartley. They tell that the grey pony knocked Bartley into the sea where he drowned. Moira gets on her knees near the body and sprinkles the holy water on the body. She resigns to her fate and says that she will have a sound sleep at night because there is no one to worry about. Moria prays that the souls of her husband's father and four sons may rest in peace. सो आइए हम बात करते हैं इस नावल की हिंदी में चर्चा करते हैं काफ़ी डिटेल्स में, ठीक है। तो जे एम सिंज, जिनका पूरा नाम जॉन मिलिंगटन सिंज है, इन्होंने इस नावल को लिखा हुआ है। बहुत ट्रेजिक नावल है ये एक, और ये दिखाती है कि किस तरीके से एक औरत जो है, मौर्य जो कैरेक्टर है इसकी, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो एक माँ है, 4-5 बच्चों की माँ है, वो किस तरीके से सरवाइव करती है। और इस ऑथर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं आइए। तो इनका जन्म जो है 16 अप्रैल 1871 में इनका जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 24 मार्च 1909। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, प्रोज राइटर भी थे, ट्रेवल राइटर यानी अपने ट्रेवलॉग लिखने में भी जो है रुचि रखते थे, वॉज इंटरेस्टेड, एंड कलेक्टर ऑफ फॉकलोर। फॉकलोर क्या होता है? स्थानीय रीजनल सॉन्ग को जो है फॉकलोर कहा जाता है। ही वॉज द की फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है वो। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ एबी थिएटर। एबी थिएटर के वो को फाउंडर भी रह चुके हैं। को फाउंडर नहीं समझते आप तो फाउंडर्स में से एक थे ये, ठीक है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक प्ले है, इसके लिए बहुत ही फेमस है वो। इट काउज्ड रायट्स, इसके कारण से डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर रायट्स भी हो गए थे ड्यूरिंग इट्स ओपनिंग रन, जब शुरुआती में ये प्ले चली थी जो है थिएटर में। तो Riders to the Sea is a play written by Irish playwright John Millington Synge. It was first performed on 25th of Feb 1904. 25 फरवरी 1904 को पहली बार इसे परफॉर्म किया गया था। इट इज़ ए वन एक्ट प्ले, वन एक्ट ट्रेजेडी कह सकते हैं, सिंगल एक्ट है ये। द प्ले इज़ नोटेड फॉर कैप्चरिंग द पोइटिक डायलॉग ऑफ रूरल आयरलैंड। इसमें देहाती क्षेत्र को दिखाया गया है। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ एरम आइलैंड्स इनिसमान, एक जगह है, आयरलैंड ही है वो, और वही इसकी सेटिंग है। द प्ले इज बेस्ड ऑन द होपलेस स्ट्रगल, यह एक संघर्ष को दिखाती है, ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की, अगेंस्ट द सी, समुद्र के खिलाफ। नोरा जो कि एक बेटी है, ब्रिंग्स ए स्मॉल बंडल, अपने साथ एक कपड़े का गट्ठर लाती है, विथ हर एंड टेल्स कैथलीन, कैथलीन जो कि उसकी बहन है, उसे कहती है दीज मे बी द क्लॉथ्स ऑफ देयर ब्रदर, ये उनके भाई का कपड़ा हो सकता है, क्लॉथ्स में ईएस होना चाहिए। माइकल जिनका नाम था। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि माइकल जो है वो कहीं वॉयज पर गया हुआ था, समुद्री यात्रा पर, और वो वापस नहीं लौटा हुआ है। तो उसको लेकर उसके परिवार चिंतित हैं, और स्वाभाविक है कैथलीन और नोरा जो उसकी भाई, उसकी दो बहनें हैं, वो भी चिंतित हैं। उसकी माँ भी परेशान है जिसका नाम मौर्य है। तो द यंग प्रिस्ट टोल्ड हर, एक पुजारी ने उनसे कहा था, एक पादरी ने, दैट ए बॉडी ऑफ ड्राउंड मैन, एक डूबे हुए इंसान की जो बॉडी है वॉज फाउंड, पाई गई थी, एंड इट माइट बी माइकल्स, और ये माइकल की हो सकती थी। द सिस्टर्स आर स्केयर्ड, वे डरे हुए हैं, टू ओपन द बंडल ऑफ क्लॉथ्स, उस कपड़े के गट्ठर को खोलने से डरे हुए हैं। दे डोंट विश टू नो ऑल दिस देयर मदर, ये लोग जान रही है लेकिन ये नहीं चाहती कि उनकी माँ को भी पता चले, जो कि जिनका नाम मौर्य है। माइकल हैज़ बिन मिसिंग फॉर अ वीक, एक सप्ताह से वो गायब है, मिसिंग है। द फैमिली हैड ऑलरेडी लॉस्ट 5 men, पहले ही 5 मेंबर्स को खो चुके हैं वे लोग, टू द सी, समुद्र में ही। दे हाइड बंडल अराउंड द कॉटेज, कॉटेज के आसपास कहीं पर छिपा देते हैं उस कपड़े के गट्ठर को। मौर्य इज प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूनरल, वो श्राद्ध की तैयारी कर रही है, अंतिम क्रिया की तैयारी कर रही है, ऑफ माइकल, माइकल की। एंड सी इज़ रेडी विथ कॉफिन, अपने हाथ में वो कॉफिन को तैयार है, कॉफिन वगैरह को लेकर। से एंटर्स द किचन लेमेंटिंग, स्वाभाविक है एक माँ का बेटा जब मरे तो
दुख तो होगा ही, पति मर चुका है, पति का भाई मर चुका है, बहुत सारे मेंबर्स खो दिए इन्होंने। एंड वरिंग दैट हर सन विल नेवर कम बैक, उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा फ्रॉम द सी, इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित परेशान है। मोरिया, नोरा एंड कैथलीन आर डिस्कसिंग द लास्ट सन ऑफ द हाउस, वो अपने आखिरी बेटे के बारे में बात करें जिसका नाम बैटली है। तो ही इज़ प्लानिंग टू गो टू द सी, और ये बेटा भी जो है, प्लानिंग में डबल एन होगा, ये बेटा भी जो है अब वो जाना चाहता है किसी समुद्री यात्रा पर, एक बाजार जाना चाह रहा है जहाँ पर ये अपने घोड़े को बेचना चाहता है, द फैमिली हॉर्सेस, सो दैट दे कुड गेट सम मनी, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, इनके पास नहीं है। कैथलीन एंड नोरा जो कि उनकी बहनें हैं, आर कन्विंस्ड, वो मान जाती है कि ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा, कोई फेयर है, मेला लगा हुआ है गैलवे में, वहाँ पर जाना होगा इन्हें जानवर बेचने के लिए, घोड़े बेचने के लिए। देयर मदर होप्स दैट द प्रिस्ट विल, और उनकी माँ ये बात वो नहीं चाहती कि जाए, क्योंकि वो इस सारे दुख के बावजूद वो उसको डर डर है उसका बेटा वापस से ना खो जाए। तो वे उम्मीद करती है, वो तो नहीं रोक पाएगी ऐसा उसे लगता है, और तो उम्मीद करती है कि जो पुजारी हैं, पादरी हैं, वो मना करेंगे ऐसे खतरनाक टाइड्स में, जो है लहरों में, इतना खतरनाक लहर चल रहा है समुद्र में, वो जाने से रोकेंगे। बाटले एंटर्स द कॉटेज लुकिंग फॉर अ न्यू पीस ऑफ रोप, वो नई रस्सी को के टुकड़े को ढूंढते हुए अंदर घुसते हैं घर में। मौर्या ट्राइज टू स्टॉप हिम, कोशिश करती है रोकने की, बट ही सेज, कहता है कि ही वांट्स टू मेक ए हाल्टर, लगाम होता है, वो लगाम बनाना चाहता है फॉर द हॉर्सेस, घोड़ों के लिए। इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ प्लानिंग टू गो, मतलब काफ़ी स्पष्ट हो जाता है कि वो जाना ही चाहता है, वो जाके ही रहेगा। मौर्या अगेन ट्राइज टू डिसुएड, फिर से कोशिश करती है एक और, उस ताकि उसे रोक सके, डिसुएड रोकने की। हिम बाय शोइंग हिम वाइट बोर्ड्स ऑफ फॉर माइकल, माइकल के वाइट बोर्ड्स दिखाती है उसे। पेइंग नो हीड, HEED होगा, मतलब कोई बात, इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है बेटा उसका। ही चेंजेज हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदलता है, एंड आस्क्स हिज सिस्टर्स, अपनी बहनों से पूछता है, कहता है, टू टेक केयर, कि ध्यान रखना, ऑफ द सीप्स, भेड़ का। ही लीव्स विदाउट रिसीविंग एनी ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद भी नहीं लेता है। इनमें एक परंपरा होती थी कि वो कोई भी काम के लिए जो है, जैसे कि आजकल हम लोग की परंपरा होती है हिंदू रिलीजन में, आई होप और भी रिलीजन्स में ऐसा होता हो, तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर, खास करके माँ पिता का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, तो इसने ऐसा नहीं किया, वो एक तरीके से कह सकते हैं रूल ब्रेक किया। ही इज़ नाउ विद अ रेड मेयर, वो एक उसके साथ एक लाल घोड़ी थी, एंड ए ग्रे पोनी, पोनी क्या होता है, तो पोनी एक शॉर्ट हॉर्स को ही पोनी कहा जाता है, पोनी एक घोड़े का ही एक प्रकार, एक नस्ल होती है घोड़े की। देन कैथलीन नोटिसेस, कैथलीन को तभी पता चलता है, दिखता है, या फिर वो नोटिस करती है, दैट ही हैज़ नॉट टेकन एनी फूड, उसने अपने साथ भोजन भी नहीं लिया है। जब माँ ही नाराज़ हो तो भोजन कौन देगा। और कैथलीन अपने माँ से कहती है, आस्क हर मदर टू गिव हिम हिज फूड एंड द ब्लेसिंग्स, कहती है कि जाकर उसे भोजन और ब्लेसिंग्स भी देकर आइए आप उसे। सी लिव्स विद द स्टिक दैट माइकल ब्रॉट, माइकल ने जो छड़ी लाई थी उसी के साथ वो चली जाती है, उसकी माँ। वंस मोरिया इज गॉन, जब जाती है, द गर्ल्स ओपन द बंडल, कपड़े के बंडल को खोलती है सोने में, कुछ जब माँ न रहे, क्योंकि वो लोग चाहती थी कि माँ ना देखे, टू चेक इफ़ दे आर माइकल्स, कि माइकल के हैं या नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहती है कम से कम फ्यूनरल करें तो इसके कपड़े को सही से दफना दिया जाए, बरी कर दिया जाए। नोरा रियलाइजेज दैट इट्स ट्रू, उसे समझ में आ जाता है कि ये बात सच है, कि ये माइकल का ही कपड़ा है, एंड आल्सो कम एट कंक्लूजन, कि इस निष्कर्ष पर भी वो आ जाते हैं दोनों, कि दैट ही वॉज डेड, कि वो मर गया है, एंड बरीड, बरीड में डबल आर नहीं सिंगल आर ही होगा, और उसे दफना दिया गया है। द सिस्टर्स हिड द क्लॉथ्स अगेन, फिर से कपड़े छिपा कर रख देती हैं, बिकॉज दे थिंक दैट, क्योंकि उन्हें लगता है, दिस विल स्पॉयल मोरियाज मूड, इससे मोरिया का मूड खराब हो जाएगा यदि कपड़े देख ली तो। सी कम्स बैक मोर डिस्ट्रेस्ड, और भी परेशान आती है पहले से ज़्यादा। सी टेल्स हर डॉटर, अपनी बेटी से कहती है, दैट सी सॉ माइकल इन द ग्रे पॉनी, ऑन द ग्रे पॉनी, तो जब उसे ग्रे पॉनी पर देखती है उसकी माँ, तो वो कहती है कि एंड सो सी कुंट ब्लेस, मतलब क्या, एक तरीके से उसे माइकल की याद आ गई, जब बाटली को घोड़े पर बैठा हुआ देखा, पॉनी पर बैठा हुआ देखा। टू काम हर डाउन, उसको शांत करने के लिए, नोरा एंड कैथलीन सो द क्लॉथ्स, कपड़े दिखाती है कि, एंड से दैट हैज़ हैड ए क्लीन क्लीन बेरियल, इसका बेरियल हो गया है, लाइक इसको दफन, इसका दफन कर दिया गया है इसको। तो मोरियाज लेमेंट्स आर इंक्रीज, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, कब, व्हेन आइलैंडर्स ब्रिंग द बॉडी ऑफ बार्टली, तुरंत ही कुछ वक्त बाद जो है बॉडी उसका जो लाश हो गया लेकर आते हैं, बार्टली का जो लास्ट बेचा बचा हुआ था। दे टेल दैट द ग्रे पॉनी नॉक्ड, और पता चलता है कि ग्रे पॉनी ने जो है नॉक कर दिया, लाइक गिरा दिया है पीठ से, बार्टले इनटू द सी, समुद्र में, वेयर ही ड्रॉन, जहाँ वो डूब कर मर गया है।
बस एक लास्ट पैराग्राफ होगा कि मोरिया गेट्स ऑन नीज, घुटनों पर गिर जाती है बेचारी, किस्मत से हार मान लेती है। एंड स्प्रिंकल्स द हॉली वाटर, का पानी छिड़कती है, जो पवित्र पानी, उन लोग का जो पवित्र वाटर होता होगा, द बॉडी ऑन द बॉडी। सी रिजाइंस टू हर फेट, वही भाग्य से हार मान लेती है, किस्मत से हार मान जाती है। एंड सेज दैट सी विल हैव ए साउंड स्लीप, और वो एक तरीके से मेंटली परेशान हो जाती है, और वो आखिरकार वो हार कर कहती है कि आज उसे बहुत ही अच्छी नींद आएगी आज रात, बिकॉज देर इज़ नो वन टू वरी अबाउट, क्योंकि अब जो है उससे फिक्र करने के लिए है ही नहीं कि वो किसका फिक्र करे। मौर्या प्रेज दैट, वो प्रार्थना करती है कि द सॉल्स ऑफ हर हस्बैंड, उसका पति जो है, हस्बैंड्स फादर, उसके पति का भाई जो है, ए सॉरी उसके एक्चुअली ससुर हो गए, लाइक फादर इन लॉ, एंड फोर सन्स, और जो उसके चार बेटे हैं, मे रेस्ट इन पीस। मतलब क्या, माइकल के पहले भी दो बेटों को उसने खो दिया है, माइकल के पिताजी, माइकल के दादाजी, और जो माइकल का एक इकलौता भाई बच गया था बार्टली, वो भी खत्म हो गया है। तो ये प्रार्थना करती है कि सबको एक रेस्ट इन पीस, सबको एक भगवान शांति दे। दैट्स इट। दैट यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच साझा करें। एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर वर्क, वी नीड सपोर्ट। आई विल प्रोवाइड ऑल द टेक्सचुअल नोट्स। ऐसे बोल कर समरी करना बहुत ही आसान होता है, टेक्स्ट प्रिपेयर करके मैं आसान भाषा में आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप हमें डिमांड भी कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट को जो है हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू दैट। So thank you for watching the complete video, and thank you for being with us and making us believe and understand you something. So thank you once again.